Hello students. Yesterday we have discussed about some defined terms and introduction of genetics. Today we will read about Mendel's law of inheritance. Okay, Mendel gave three laws of inheritance. First is law of dominance. Second is law of segregation. This law is also known as law of purity of gametes. And third law is law of independent assortment. So we see what is law of dominance. Okay, what is first law of dominance? It states that when a pair of alleles are brought together, then in F1 generation, in F1 generation, F1 generation means जब पेरेंट्स जो क्रॉस कराते हैं फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर, तो जो प्रोजेनी मिलती है दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन, यानी ऑफ स्प्रिंग ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड F1 जनरेशन. Only one of them expresses itself, hiding or masking the other expression completely. Then expressive characters will be dominant. Yes, we can understand it with this example. For example, Mendel took two plants. One is tall and another was dwarf. Alleles of tall plant is capital T, and dwarf small t. क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं these are parent. यहाँ पे ये क्या है? पेरेंट्स. You can take another example. You can take one contrasting character, shape of seed, color of seed, shape of pod, color of pod, position of flower. You can take any other example. So tall plant fertilized with dwarf plant. Allele of two plants, capital T, we can say genotype. Capital T, and genotype of dwarf plant is small t. Now gamete formation. Gamete formation means number of chromosome will be half. Okay, during gamete formation number of chromosome will be half. Suppose this is P plant and P plant is having 14 chromosome. 2n is equal to 14. Then what will be the number of chromosome in gamete? It will become half. So 7 chromosome will be present in P gamete. Clear? So this is gamete formation. We can write here, this is gamete. Now one gamete fuses with other. यहाँ पर ये क्या है? गैमेट फॉर्मेशन कौन सा हुआ है कि जब हमने पॉलिनेशन पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन जो है या माइक्रोस्पोर हैं, दे रीच टू मेगास्पोर एंड फर्टिलाइज. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पॉलन ग्रेन है और एक क्या है? मेगास्पोर होगा जिसके अंदर ओव्यूल होगा, मेगास्पोर से फ्यूज होगा. सो यहाँ पर ये दिस प्लांट, दिस गैमेट फ्यूजेस विद दिस. तो दिस स्टेप इज नॉन एज pollination. So क्या बनेगा? एक plant is having capital T with small t. Okay, अब इस plant का करेक्टर कैसा होगा? ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैंडल्स लॉ ये हो गई F1 जनरेशन. तो अकॉर्डिंग टू मैंडल्स लॉ टॉल और ड्वार्फ में से डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है? टॉल. सो दिस प्लांट विल बिकम टॉल. So it follows Mendel's rule. When a pair of alleles are brought together in F1 generation, only one of them expresses itself. यानी small t तो यहाँ express नहीं हुआ, ये mask हो गया. और इसको किसने mask किया? tallness expression ने. ठीक है, तो जो expressive character है that will be dominant. तो यहाँ पर tallness क्या है? tallness is डोमिनेंट करेक्टर, जो अभी हमने पहले ही पढ़ लिया है. लेकिन अब हम इसे एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे कि
कौन सा करेक्टर डोमिनेंट होगा और कौन सा रिसेसिव है। जैसे हम शेप ऑफ सीड की बात करें तो उनमें क्या होगा डोमिनेंट करेक्टर, यस यू आर राइट, राउंड होगा। और अगर हम बात करें कलर ऑफ कोड तो क्या होगा, ग्रीन होगा। तो यानी F1 जनरेशन में ऑलवेज ऑलवेज डोमिनेंट करेक्टर्स विल बी एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका अगर हम रिजल्ट लिखें, व्हाट इज द रिजल्ट, the dominant character are expressed in F1 generation according to Mendel's first law। ठीक है, तो आपको जब भी एग्जाम में आया लॉ ऑफ डोमिनेंस तो आप इसका पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन एग्जाम्पल लिखेंगे, देन इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक F1 जनरेशन तक। इसे आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने F1 जनरेशन की ही बात की है। अगर हम देखें कि जो ब्लैक आइज है ये दे आर डोमिनेंट देन ब्लू आइज। ठीक है, तो ब्लैक आइज में क्या हो गया, डोमिनेंट करेक्टर। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड लॉ। यस, व्हाट इज सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन or law of purity of gamete. This law is also known as law of purity of gamete। It states that when a pair of alleles are brought together in F1 hybrid, in F1 hybrid they remain together। अभी हमने पढ़ा कि F1 हाइब्रिड में जो एलिल्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स के थे, एक कैपिटल टी था एक स्मॉल टी था, दे रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, यानी दे डू नॉट कंटामिनेट ईच अदर, दे डू नॉट कंटामिनेट ईच अदर, दे डू नॉट ब्लेंड, दे सेपरेट कंप्लीटली and remain pure during gamete formation। See, we took example of tall plant cross with dwarf plant। These are parent, capital T, small t, small t। तो फर्स्ट लाइन क्या है, when a pair of alleles are brought together, when a pairs of alleles are brought together। अब क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा, हमेशा जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, अभी जैसे डिस्कस किया हमने, इसके साथ साथ कि जैसे कैपिटल टी है, यहाँ पर कितने टाइप्स के गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि सिमिलर एलिल्स हैं तो और एक ही गैमेट फॉर्म, मतलब एक ही टाइप के गैमेट फॉर्मेशन होंगे। इट मीन्स ये नहीं है मैंने एक लिखा है तो एक ही गैमेट बनेगा, नो, इट मीन्स जितने भी गैमेट्स बनेंगे दे आर हैविंग टी एलिड्स, कैपिटल टी एलिड, बिकॉज यहाँ पर क्या है, सेम है। अगर मैं लिखती कि कैपिटल टी स्मॉल टी तो यहाँ पे कितने टाइप्स के गैमेट बन सकते थे, एक तो ये बन सकता था कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये 2 टाइप्स के गैमेट बन सकते थे। अगर मैंने लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर तो कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं, वन इज हैविंग कैपिटल आर एंड अदर इज हैविंग स्मॉल आर। तो गैमेट फॉर्मेशन जब हम यहाँ लिखते हैं तो इट मीन्स यहाँ पर टाइप्स ऑफ गैमेट्स है, नाइदर नंबर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट्स यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं टाइप ऑफ गैमेट। सो हेयर कैपिटल टी तो कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे, 1 टाइप ऑफ गैमेट विच इज कैपिटल टी। स्मॉल टी से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी। Now this gamete fuses with this, यानी pollination occurs, fertilization occurs, तो plant, yes, plant will become कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इसमें ये 2 टाइप्स के एलिल्स आ गए क्योंकि दोनों डिफरेंट एलिल्स। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। और अभी अकॉर्डिंग टू हमने जैसे पढ़ा मैंडल्स फर्स्ट लॉ, तो टॉल हुआ। अब यहाँ पर देखिए तो ये फीचर कैसा एक्सप्रेस हुआ, टॉल, जबकि इसमें क्या था, रेसेसिव जो गैमेट भी है। तो यहाँ पर ये कहा है इन F1 हाइब्रिड दे रिमेन टुगेदर, यानी F1 हाइब्रिड में तो ये क्या है, दोनों साथ साथ हैं एलिड्स विदाउट मिक्सिंग। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी को ब्लेंड कर लिया, यानी अब ये एक्सप्रेस ही नहीं हो सकता। कैसे, देखिए अब हम कैपिटल टी का सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मीन्स ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें बाइसेक्सुअल, जिसका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी एंथर जो है
सेम एंथर और हम कहेंगे सॉरी स्टेमन और कार्पल जो है वो सेम फ्लावर पे प्रेजेंट है, ठीक है, सेम फ्लावर पर ही प्रेजेंट है दोनों, ठीक है। तो एंथर से यहाँ पर स्टेमन कहाँ पर ट्रांसफर हुए, पॉलिन ग्रेन कहाँ हुए, कार्पल पर, यानी सेम फ्लावर है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, कि सेम फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ हमने लिख दिया सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पर जो सेल्फ पॉलिनेशन तो सेम यही होगा, प्लांट एलिल्स उसमें यही होंगे। जब अब क्या होगा, अब जब इसका क्रॉस इससे करा रहे हैं तो हम गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे कि इसमें कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ पे मैंने गैमेट्स को सर्कल किया है और जो प्लांट होगा डिप्लॉयड उसे सर्कल नहीं किया, कि नोटिस करना। यहाँ पर ये प्लांट ने बनाए कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट, और दूसरा प्लांट है, एक हम कंसिडर करते हैं मेल, एक कंसिडर करते हैं फीमेल। दूसरे प्लांट में क्या क्या किस किस टाइप के गैमेट बन सकते हैं, एक तो इसमें बन सकता है कैपिटल टी और दूसरा क्या बन सकता है, स्मॉल टी, ठीक है। इसे हम कहते हैं चेकर बोर्ड मैथड। इस तरह से ही आपको चेकर बोर्ड मैथड, पुन्नेट स्क्वायर मैथड से ही आपको ये बनाना है, ठीक है। अगर हम वैसे क्रॉस करते हैं तो वो थोड़ा सा मैसी और कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो आपको इस तरह से ही नोट करना। अब यहाँ पर अगर ये गैमेट कैपिटल टी गैमेट फ्यूजेस विद गैमेट विच हैविंग कैपिटल टी ऑल्सो, तो क्या बनेगा प्लांट, क्या होगा कॉम्बिनेशन, कैपिटल टी, ठीक है। अब दिस गैमेट फ्यूजेस विद दिस गैमेट हैविंग स्मॉल टी, तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन। when this gamete fuses with this gamete तो क्या होगा कॉम्बिनेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी फ्यूजेस विद दिस गैमेट हैविंग स्मॉल टी मीन्स यहाँ पर ड्वार्फ वाला जो एक एलिल है, यानी इसमें किससे फीचर है, इस एलिल में ड्वार्फ के, और इसमें कैसे फीचर है, टॉलनेस के। यानी गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम है उनके अंदर जो जीन है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, इधर तो टॉलनेस को और इस वाले गैमेट में ड्वार्फनेस को। तो यहाँ पे स्मॉल टी फ्यूजेस विद दिस गैमेट, तो क्या बनेगा, जीनोटाइप स्मॉल टी। अब हमें ये जीनोटाइप कभी नहीं दिखाई देते, हमें कैसे दिखेगा, प्लांट्स लॉन्ग है, शॉर्ट है, मिडिल है, किस तरह का। जब कैपिटल टी होगा कहीं पर भी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर एक भी एक्सप्रेस हो जाए तो आपको पता है कि वो जो प्लांट है वो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। तो ऑब्वियसली कैपिटल टी जो है इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप मीन्स एक्सप्रेशन, तो ये होगा टॉल, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखिए एक तो जीन है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी, यहाँ पे सिंगल एलिल भी आ गया डोमिनेंट वाला तब भी ये कैसा होगा, टॉल, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल होगा। बट यहाँ देखिए इन फोर्थ केस स्मॉल टी यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, दोनों कैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन में। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि जब भी रिसेसिव एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो दे एक्सप्रेस, तो ये होगा ड्वार्फ, ठीक है, ये होगा ड्वार्फ। अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप मीन्स आपको कितने प्लांट्स जो हैं जो एक्सप्रेस जो टॉल एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब टॉलनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ लिखेंगे फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं पी से और जीनोटाइप को जी से। तो फिनोटाइप 1 2 3, टॉल तो है 3 और ड्वार्फ है 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें जीनोटाइप, तो कैपिटल टी वाले कितने प्लांट्स हैं, कैपिटल टी वाला 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने प्लांट्स हैं, एक तो ये भी है तो 2, और स्मॉल टी के कितने प्लांट्स हैं, 1। बट हमें जो कभी भी ये जीनोटाइप नहीं दिखता है, ऑब्जर्वेबल जो करेक्टर्स हैं वो फिनोटाइप ही हम जो कहते हैं, कि हमें बस ये दिखेगा प्लांट टॉल है, अब हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर कौन सा जीनोटाइप है, ठीक है। तो फिनोटाइप हो गया 3:1 एंड जीनोटाइप हो गया 1:2 2:1। अब यहाँ पे मैंडल ने क्या कहा था, देखिए
मेंडल ने कहा था कि जब इस F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, तब भी देखिए जब उसमें ये जनरेशन आई है, इस जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे F2 जनरेशन से। F2 जनरेशन में उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जितनी भी प्रोजेनी बनेगी वो सब कैसी होगी, टॉल, क्योंकि F1 में ये हुआ था। बट उनको रिजल्ट्स जो थे वो रिजल्ट से सरप्राइज हुए कि उसमें से एक ड्वार्फ यानी कुछ प्लांट्स जो थे वो ड्वार्फ भी थे। तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि F1 जनरेशन से जब एक गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था तो रेसेसिव करेक्टर जो है वो कंटामिनेट नहीं हुआ था, वो ब्लैंड नहीं हुआ था, किससे, डोमिनेंट करेक्टर से मिक्स नहीं हुआ था, ना ही उसको सप्रेस किया था डोमिनेंट करेक्टर ने। इट रिमेन्स प्योर, ठीक है, इट रिमेन्स प्योर, प्योर था तभी तो ये एक्सप्रेस हुआ। तो इसे ही कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स हैं वो प्योर ही रहते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो, रेसेसिव हो, ठीक है। तो दे सेपरेट कंप्लीटली एंड रिमेन प्योर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। चाहे वो एक्सप्रेस नहीं हुआ था F1 जनरेशन में, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये गैमेट बना ही था, ऐसा नहीं कि सप्रेस हो गया कि गैमेट ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो दिस लॉ इज कॉल्ड मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ देखिए जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will write this statement and you have to write complete this cross. This is called monohybrid cross. Monohybrid cross means we have taken one contrasting character example, ठीक है। तो हम वन contrasting character से explain कर रहे हैं, so this is called monohybrid cross. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको F2 जनरेशन तक ही रिप्रेजेंट करना है, आपको फिनोटाइप भी लिखना है, जीनोटाइप भी लिखना है। फिनोटाइप में यहाँ पर भी लिखना होगा कि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ऐसे ही नहीं कि 3:1 लिख दिया, नो, यहाँ पर भी लिखना होगा ये 1 क्या है, ये कैपिटल टी का रेशियो है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये स्मॉल टी है। क्लियर? तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स।